ત્યાં જે થાંભલાઓ હતા એ થાંભલાઓ પર અનેક ચિત્ર અને મૂર્તિઓ હતી. એ મંદિરની હતી. મસ્જિદમાં કોઈ મૂર્તિ ન હોય, એમાં સ્વસ્તિક છે, ઓમ છે, ત્રિશૂળ ન હોય. એટલે ડોક્ટર લાલ અને એ સિવાયના પણ અનેક ત્યાર પછી ખોદકામ કર્યા. આ બધા જ ખોદકામમાં કંઈક ને કંઈક જૂના મંદિરના અવશેષો મળ્યા. છેલ્લું મોટું ખોદકામ એ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનઉ બેન્ચના આદેશથી થયું અને ભારતના પુરાતત્વ વિભાગે કર્યું. એ કરતા પહેલા એણે હવામાંથી જમીનની અંદર શું છે, જેને જીઓ રડાર કહે છે, એનાથી ફોટા લીધા હતા અને એમાં જમીનમાં દિવાલો, થાંભલાઓ મળી આવ્યા હતા. અને જ્યાં દિવાલોને થાંભલા બતાવ્યા હતા ત્યાં જ હાઈકોર્ટે ખોદકામ કર્યું અને ત્યાં જૂના મંદિરની દિવાલો, અવશેષો મળી ગયા હતા. એટલે વાર તો થવી જ નહોતી જોઈતી, પરંતુ ઇતિહાસ પોતાની રીતે ચાલે છે. હિન્દુઓની શ્રદ્ધા હતી કે આ રામની જન્મભૂમિ છે, આ મંદિર હતું, બનવું જોઈએ, એવું બધા જ હિન્દુઓની શ્રદ્ધા હતી. અને આપણે કોઈ મુસલમાનના સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. જય શ્રી રામ. સંવાદ વિથ દેવાંગમાં આપનું સ્વાગત છે. આજનો એપિસોડ ખરેખર ખાસ છે. આજે અમે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ સાથે વિશિષ્ટ વાત કરી છે, જે ડૉક્ટર કે કેન્સર સર્જન જ નહીં, પરંતુ હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદના અગ્રણી, આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા, જેમણે હિન્દુ માટે સંઘર્ષ કરીને રામ મંદિરમાં પોતાનું સમર્પણ આપ્યું છે. ચાલો એમના સાથે વાત કરીએ, નિહાળીએ. આજે તમને અહીંયા જોઈને મને ખૂબ ગર્વનો અનુભવ થાય છે કે હું હિન્દુ છું, મેં હિન્દુમાં જન્મ લીધો છે. ધન્યવાદ. હું રામ મંદિરનું આખું સ્ટોરી જાણવા માંગુ છું કે રામ મંદિરનું નિર્માણ થયું એમાં સૌથી વધારે હું માનું છું ત્યાં સુધી યોગદાન તમારું છે. તો હું તમારા મોઢેથી રામ મંદિરનું સ્ટોરી જાણવા માંગીશ. રામ મંદિર તો હું જન્મ્યો નહોતો ત્યારથી જ બનાવવાનો સંઘર્ષ 450 વર્ષોથી આપણી 25 પેઢીઓ કરી રહી હતી. જ્યારે રામ મંદિર તોડવા 450 વર્ષ પહેલા આવ્યા ત્યારે જ ત્યાંના હિન્દુઓ બહાદુરીથી લડાયા થયા અને મોટા પ્રમાણમાં મુગલોને માર્યા હતા. એટલે રામ મંદિરનો આંદોલનનો સંઘર્ષ તો 450 વર્ષોની 25 પેઢીઓનો છે. એમાં અત્યારના સમયમાં જે આંદોલન ચાલ્યું 1984 થી, એ બધામાં સક્રિય જોડાવાનો, યોગદાન આપવાનો ભગવાને મોકો આપ્યો અને આપણા જીવનનું સદભાગ્ય છે. પણ રામ મંદિર બન્યો અત્યારે 2024માં બને છે. 1980 પ્રોફેસર બીબી લાલ, જેમણે આર્કિયોલોજીસ્ટ છે, જેમણે અવશેષો હિન્દુના મેળવ્યા હતા કે બાબરી મસ્જિદના પિલ્લરો કહેવામાં આવે છે, બાબરી મસ્જિદના પિલ્લરો નથી, 50 થી વધારે પિલ્લર મળી આવ્યા, આપણી ભગવાનની મૂર્તિઓ મળી આવી. તો 1980 થી લઈને 2024 સુધીમાં આટલો સમય શાના માટે લાગ્યો કે હિન્દુને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો રામ મંદિર માટે? પ્રોફેસર લાલ સાથે મારો પણ સંબંધ હતો. એ આર્કિયોલોજીસ્ટ, પુરાતત્વવિદ હતા અને ત્યાં જે થાંભલાઓ હતા એ થાંભલાઓ પર અનેક ચિત્ર અને મૂર્તિઓ હતી. એ મંદિરની હતી. મસ્જિદમાં કોઈ મૂર્તિ ન હોય, એમાં સ્વસ્તિક છે, ઓમ છે, ત્રિશૂળ ન હોય. એટલે ડોક્ટર લાલ અને એ સિવાયના પણ અનેક ત્યાર પછી ખોદકામ કર્યા. આ બધા જ ખોદકામમાં કંઈક ને કંઈક જૂના મંદિરના અવશેષો મળ્યા. છેલ્લું મોટું ખોદકામ એ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનઉ બેન્ચના આદેશથી થયું અને ભારતના પુરાતત્વ વિભાગે કર્યું. એ કરતા પહેલા એણે હવામાંથી જમીનની અંદર શું છે, જેને જીઓ રડાર કહે છે, એનાથી ફોટા લીધા હતા અને એમાં જમીનમાં દિવાલો, થાંભલાઓ મળી આવ્યા હતા. અને જ્યાં દિવાલોને થાંભલા બતાવ્યા હતા ત્યાં જ હાઈકોર્ટે ખોદકામ કર્યું અને ત્યાં જૂના મંદિરની દિવાલો, અવશેષો મળી ગયા હતા. એટલે વાર તો થવી જ નહોતી જોઈતી, પરંતુ ઇતિહાસ પોતાની રીતે ચાલે છે. એમાં એક કે મોહમ્મદ કરીને મુસ્લિમ હતા આર્કિયોલોજીસ્ટ,
એમણે એમના મોઢેથી સ્ટેટમેન્ટ આપેલું કે હિન્દુનું મંદિર જ બનવું જોઈએ અને એમને બી સરકારે આટલી સિક્યુરિટી ના આપી. એવું છે કોઈ એકાદો મુસલમાન એવો નીકળ્યો હશે હા. જે કે બાકી હિન્દુઓની શ્રદ્ધા હતી કે આ રામની જન્મભૂમિ છે, આ મંદિર હતું, બનવું જોઈએ, એવું બધા જ હિન્દુઓની શ્રદ્ધા હતી અને આપણે કોઈ મુસલમાનના સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. આપણે તાલા ખોલ જે આંદોલન ચાલુ કર્યું ત્યારથી હું તમારી જર્ની જાણવા માંગુ છું કે એ શરૂઆતથી અત્યાર સુધી તમને, મને લાગે છે આખા ભારત કરતા તમને વધારે ગર્વ હશે. સૌથી પહેલું રામ મંદિર આંદોલન નો કોઈ અત્યારના સમયમાં કાર્યક્રમ થયો તો ધર્મ સંસદ 1984 દિલ્હી, અને પહેલો કાર્યક્રમ થયો એ તાળા ખોલો અભિયાન 1986. એના પછી રામ જાનકી રથયાત્રા, રામશિલા પૂજન, સવા રૂપિયો ઉઘરાવવાનો, પછી આજે મંદિર બન્યું છે 1989 નવેમ્બરે શિલાન્યાસ, પછી 89 ની કાર સેવા, 90 ની કાર સેવા અને 92 ની કાર સેવા અને છેલ્લે 2018 આ રામ મંદિરના મહત્વના પડાવો હતા. અત્યારે રામ મંદિર બની રહ્યું છે તો તમે એમનું ભવિષ્ય જે યુવાનોના હાથમાં છે તો યુવાનોનું હિન્દુત્વ કેવું હોવું જોઈએ તમારા મતે? એને હિન્દુત્વ માટે ગૌરવ હોવું જોઈએ. પૂરો એપિસોડ અમે ટૂંક સમયમાં લાવી રહ્યા છીએ ગુજરાતીમાં. બટ વેઇટ, રામ મંદિરના નિર્માણમાં ડૉક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા કે લોકોનું સમર્પણ આપણે એમના સંવાદથી જાણીએ, નિહાળીએ. हिंदुओं का अपने गौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए, सुरक्षा के लिए संघर्ष ये लगभग 1700-1800 वर्षों का है. ईस्वी सन 378 तक पूरा यूरोप हिंदू था और तब इस्लाम नहीं था, इसलिए अरबस्तान और एशिया भी हिंदू था. तो यह 1700 शताब्दी से संघर्ष चला और यह संघर्ष में विश्व की किसी जाति ने सबसे लंबा संघर्ष, सबसे ज्यादा बलिदान, लड़ाई लड़ी तो वह हिंदू समाज है. और वह अनेक ऐतिहासिक संघर्ष लड़ाइयों में राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई 450 वर्ष और 25 पीढ़ियों ने लड़ी. इस पीढ़ी की लड़ाई 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन की प्रथम धर्म संसद, जिनमें अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, मानी अकेले राम मंदिर बनाने का संकल्प नहीं था, काशी मथुरा तीनों का. और इसलिए राम मंदिर आंदोलन समिति वहां नहीं बनी थी, धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति, धर्मस्थान मानी ये तीनों धर्मस्थान. और उनके पहले अध्यक्ष गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी 1984 में बने. तो आधुनिक संघर्ष 1984 से शुरू हुआ, पर यह संघर्ष तो 450 वर्षों था. आज ही मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, जब मीर बाकी राम मंदिर तोड़ने आया तो अयोध्या के नजदीक रहने वाले, पूजा करने वाले एक सामान्य व्यक्ति, उनका नाम देवीदीन पांडे, उन्होंने लड़ने का फैसला किया और वो बड़ी सभी जातियों की, हिंदुओं की एक सेना जनता की ओर से शुरू करके मुगलों से लड़ने निकले थे. अकेले व्यक्ति ने 700 लोगों को मार गिराया था और लड़ते लड़ते उनका वहां बलिदान हुआ था. तो 450 वर्षों पहले कोई एक सामान्य पूजा करने वाला, गांव में रहने वाला हिंदू गांव के सभी जातियों के हिंदू साथियों को लेकर सर कटाने के लिए निकल सकता है. इसलिए राम मंदिर का लड़ाई नाम की लड़ाई नहीं थी, सर कटाने की लड़ाई. लाठी गोलियां खाने की, जेलों में जाने की,
मैंने एक ही उदाहरण देवीदीन पांडे का दिया, यही कोठारी बंधुओं का रहा। और स्मरण करते हैं तो राम मंदिर के आधुनिक इतिहास में सबसे पहला कार्यक्रम ताला खोलो अभियान था। ताला खोलो क्यों? 1950 से राम लला जहां विराजमान थे वह स्थान पर ताला था, कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। और 1986 में आंदोलन चला, ताला खुला। 1986 में ही राम जानकी रथ यात्रा देश के लाखों गांवों पर जाकर राम मंदिर का जागरण किया। आधुनिक इतिहास में रथ यात्रा वह प्रचली थी 1986 की राम जानकी रथ यात्रा ने। इसके बाद इतना ही ऐतिहासिक 1989 में राम शिला पूजन मेरे गांव की शिला अयोध्या के राम मंदिर में, और उनका निर्णय तीर्थराज प्रयाग के 89 के महाकुंभ में हुआ। कुंभ में रामशिला पूजन का निर्णय हुआ। कुंभ में राम मंदिर कैसे बने उसका मॉडल अहमदाबाद से बनाकर हम ले गए थे, तो बताया कि ऐसा मंदिर बनने वाला है, और उनका चित्र निकाला था और लिखा था कि ₹1.25। मानिए यह मंदिर बनेगा, जब बाबर का ढांचा खड़ा था तब कहा था यह मंदिर बनेगा, ₹1.25 दो। और वही 89 के 9 नवंबर को बाबरी ढांचा पर भगवा झंडा लहराने का संकल्प किया। जब बाबर का ढांचा खड़ा था तब कहा कि मंदिर ऐसा बनेगा, हमें ₹1.25 दो। 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया, 8 करोड़ 40 लाख लिया, पैसे ट्रस्ट में रखे, और 90 से यही पैसे से पत्थर खरीदकर तराशने का काम चल रहा था। आज जो मंदिर बना है उसमें 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से तराशे पत्थरों से बना। और तीसरा, अयोध्या की पहली कार सेवा, ऐलान किया कि चलो अयोध्या। देश का हिंदू निकल पड़ा लाठी गोलियों के बीच। 9 नवंबर 89 में कुर्बानियां देकर रामलला का भगवा झंडा फहराकर भव्य राम मंदिर की नींव तो तब डाली गई थी जब 9 नवंबर 89 में बाबर के ढांचे पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया था। उसी वर्ष 89 में शिलान्यास करने का निर्णय किया। शिलान्यास उनका करते हैं या भवन बनाना होता है। तो बाबर का ढांचा खड़ा था, वो गर्भगृह बनने वाला, और वहां से 200 फीट आगे जहां सिंह द्वार प्रवेश द्वार बनने वाला था, वहीं पर शिलान्यास करने का फैसला किया। सरकार ने कहा कि आप, क्योंकि अगल बगल की जमीन हमने खरीद ली थी चारों ओर, तो जहां हम शिलान्यास करने वाले थे वो जमीन हमने खरीद ली थी। उस समय का बना है, जिनका मैं भी ट्रस्टी न्यासी था, राम जन्मभूमि न्यास, उनकी थी। सरकार ने कहा जमीन आपकी है, पर विवादास्पद है, आप शिलान्यास नहीं कर सकते। संघर्ष चला। रात को 11 बजे सरकार ने घोषित किया कि अब जमीन विवादास्पद नहीं है, आप शिलान्यास कर सकते हो। और नवंबर में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास उस समय के राम जन्मभूमि न्यास ने किया। 90 में फिर से कार सेवा हुई जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। गोलियां चलाई, कोठारी बंधु सहित सैकड़ों कार सेवक राम भक्त बलिदान हुए। 92 में तीसरी कार सेवा हुई, और वह कार सेवा में बाबर का ढांचा जमीन से हमेशा के लिए हट गया। इतना नहीं, लगभग 10 बजे के करीबन बाबर के ढांचे पर चढ़ना शुरू किया था। मैं भी था। यहाँ के गुजरात के मेरे साथ तो 22,000 से ज्यादा लोग थे। 4:30 बजे बाबर का ढांचा ढहने की स्थिति आई, तो बाबर का ढांचा के लिए भगवान रामलला की मूर्ति थी। तो ढहने के पहले हम सबने मूर्ति हटाई ताकि मूर्ति ढांचे में न दब जाए।
और 4:30 बजे ढांचा गिर गया, मूर्ति हाथ में रखी और जो 4-5 लाख कार सेवक आए थे उन्हें बाबर के ढांचे के अवशेष के टुकड़े एक एक अपने घर के लिए उठाना शुरू किया। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ तब बाबर के ढांचे का एक टुकड़ों का नामो निशान नहीं था और दूसरे दिन सूर्योदय हुआ तब बाबर का ढांचा गिरने के पहले रामलला की मूर्ति हमने हटा ली थी। वह मूर्ति वहां फिर से हमने भगवान को बिठाकर उस पर कपड़े का कंतान का टेम्पररी ऊपर मंदिर बना दिया। वह मंदिर अब तक वहां था। तो 5 लाख कारसेवक अयोध्या में थे। इसके बाद भी राम ज्योति यात्रा, राम पादुका यात्रा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान शक्ति जागरण यात्रा, 108 श्री राम जय जय राम के मंत्र करना, ऐसा हर 1-2 वर्षों में एक कार्यक्रम देकर राम मंदिर की 450 वर्षों से जो आग प्रज्वलित थी उनको जिंदा रखने का काम हम लोग मिलकर करते रहे। 92 के बाद पहली बार अयोध्या में लाखों राम भक्त आए। वो घटना 2018 21, 22, 23 अक्टूबर थी और वहां अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में मानी 1984 की प्रथम धर्म संसद से लेकर 2018 का चलो अयोध्या, लखनऊ अयोध्या कुछ तक यह आंदोलन में जुड़े रहने का, गिलहरी का योगदान देने का मौका हम में से अनेक लोगों ने, मुझे सही भगवान ने दिया। तो कुछ दिनों से राम मंदिर 22 तारीख को नई मूर्ति के साथ दर्शन के लिए खुला होगा। तो लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब लाठी गोली खा रहे थे तो हम आपके साथ, 89 में भी हम थे, 90 में भी हम थे, 92 में भी हम थे, 2018 में हम थे। तो लाठी गोली खाने थे तब हम थे और लाठी गोली खाने का निमंत्रण हमको किसी ने नहीं दिया था। भगवान राम ने हमारे दिल में आवाज उठाई कि बिना निमंत्रण हम लाठी गोली खाने के लिए जाए। और आज भव्य मंदिर बन रहा है। तो हम क्या आनंद में भागीदार नहीं हो पाएंगे? क्या आप अकेले आनंद लेंगे? तो निमंत्रण दिया है तो हमें भी आनंद के प्रसंग में सहभागी होना ही चाहिए। परंतु लाठी गोली खाने के लिए 8 लाख लोग थे, तीनों कारसेवकों में मिलकर या चौथी 2018 मिलाकर। और अब उनको भूलकर कैसे करेंगे? तो मेरे मन में विचार आया कि 22 तारीख को सीमित संख्या का विजय का कार्यक्रम हो जाए। 24 तारीख को हमारा धन्यवाद दर्शन होगा। क्या होगा? धन्यवाद दर्शन। क्यों? हम भगवान को दर्शन करके धन्यवाद करेंगे कि इस जीवन में लाठी गोली खाकर धर्म का काम करने का हमने मौका दिया है। इसलिए भगवान आपको धन्यवाद, आपको थैंक यू, आपको थैंक यू। इसलिए 24 जनवरी को धर्म का सेवा करने का मौका देने के लिए भगवान को धन्यवाद के हम मिलकर दर्शन करेंगे। इसलिए 1 महीने से रात दिन मुझे फोन करने वाले लोगों को कहा कि लाठी गोली खाने के समय बिना निमंत्रण आप आए। आज हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप 8 लाख कारसेवकों के बलिदान से, संघर्ष से, हिम्मत से, लाठी गोली खाने से ही यह मंदिर बन रहा है। और मंदिर बनने का आज की पीढ़ी में किसका योगदान है?
तो लाठी गोली खाने के लिए आने वाले 8 लाख कार सेवकों का। इसलिए कहा कि 24 तारीख को भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आप आओ। तब लाठी गोली खाने में भी आपके साथ मैं था। आज 24 जनवरी को विजय का दर्शन करने के लिए भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा। तब भी लाठी गोली खाने के लिए हम खड़े थे। तब भी कौन सा कार सेवक कहां रहेगा, ये व्यवस्था हम ही कर रहे थे। कौन कहां खाएगा, उनकी व्यवस्था हम कर रहे थे। और लाठी गोली में इजाग्रस्त हुआ तो फैजाबाद की अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट करवाने का काम भी हम ही कर रहे थे। 6 दिसंबर 92 में बाबर का ढांचा तोड़ने के लिए जो ऊपर चढ़ता था, एक घा मारता था, वह सीधा 100-200 फुट नीचे गिर जाता था, ऊपर दूसरे घा के लिए नहीं टिकता था। मैं स्वयं गुजरात से 2 एम्बुलेंस लेकर गया था। हमारे पास 20 एम्बुलेंस थी और बाबर का ढांचा तोड़ने वाला नीचे गिरता था, उनको हम एम्बुलेंस में लेकर फैजाबाद की हॉस्पिटल में सेवा करने का काम करने का मौका भी भगवान ने डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को दिया था। जब बाबर का ढांचा टूट गया तब मैं फैजाबाद हॉस्पिटल में पहुंचा। तब 700 से ज्यादा बाबर का ढांचा तोड़ते तोड़ते गिरकर किसी का पांव टूटा था, हाथ टूटा था, किसी के मुंह से रक्त गिर रहा था, पांव में गिर रहा था। ऐसे 700 से ज्यादा कार सेवकों को प्रणाम करके उनकी सेवा करने का डॉक्टरी काम भी भगवान की कृपा से हमने किया। इसलिए जब लाठी गोली खाने थे तब भी कंधे से कंधा मिलाकर हम ही साथ थे। गिर गए तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए भी हम थे, और अस्पताल चले गए तो आपको नमस्कार करके आपकी डॉक्टरी सेवा करने के लिए भी हम थे। तो आओ हम मिलकर 8 लाख से जितने कार सेवक अयोध्या 89, 90, 92, 2018 में आए थे। हो सकते कि कुछ बंधुओं का उम्र के कारण शरीर शांत हो गया तो उनके परिवार सबको अयोध्या भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने का मेरा और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का आपका निमंत्रण है। ये मंदिर आपकी लाठी गोली खाने की जीत के कारण है। यह मंदिर लाशें गिर रही तब भी भगवा उठाकर बाबर के ढांचे पर भगवा लगाने वाले कार सेवकों के कारण है। इसलिए आप सबको 23 तारीख के बाद सभी लोगों के दर्शनों के लिए तीर्थ स्थान न्यास खुला मुख रहा है। तब सबको अयोध्या आने का निमंत्रण है। और 24 जनवरी को जो आएगा वह सभी कार सेवकों का स्वागत और उसका सम्मान करके धन्यवाद अदा करने का काम मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कर दूंगा। साथ में जो आए हैं मिलकर रामलला के दर्शन करके रामलला को धन्यवाद थैंक यू करेंगे कि भगवान आपकी कृपा से ही इस जीवन में धर्म की सेवा करके लाठी गोली खाने का मौका आपने दिया, इसलिए भगवान धन्यवाद। अब एक मौका लाठी गोली खाए बिना काशी मथुरा बनाने का भी भगवान हमें दे दीजिए, ताकि अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों हमारा संकल्प पूरा होने का आपके आशीर्वाद से हमें आनंद मिले। तो मैंने राम मंदिर आंदोलन उनके इतिहास के कुछ पन्ने और 8 लाख से ज्यादा कार सेवकों को अयोध्या के रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रण। सभी लोग को 24 तारीख को आ नहीं पाएंगे, इसलिए 2-3-4 महीने में जब अनुकूलता है तब मेरे सभी कार सेवक बंधु या उनके परिवार के लोग दर्शन के लिए जरूर आए। हाँ, 24 तारीख को आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, साथ में दर्शन करेंगे, परंतु संख्या के कारण
अनुकूलता के कारण दूसरी तारीख में भी सब अपनी अपनी अनुकूलता से जाने का प्रयास करें और वहां की ब्रह्म मंदिर की व्यवस्था करने वाली जो भी समिति है उनकी सूचना का हम पालन करके व्यवस्था बनाकर दर्शन भी करेंगे और राम मंदिर की गरिमा बनी रहे, उनमें देश के बंधु हम दर्शन करते समय उनके पहले बाद में भी भगवान राम की गरिमा बने रहे, उनमें हम सहयोग करेंगे। राम का मंदिर तो बन गया, अब भगवान काशी विश्वनाथ का काशी में भव्य मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का अभियान हम मिलकर आगे ले जाएंगे। परंतु यह अभियान शुरू हुआ तब से एक वाक्य उस समय का गीत आपको याद दिलाता हूं। गीत था, युग युग से स्वप्न संजोए जो, युग युग के स्वप्न संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, युग युग से स्वप्न संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना। तो मंदिर भी बनाना था, राम राज्य मानी ये देश का हर एक हिंदू सुखी हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो, हर एक को रहने के लिए अच्छा घर मिले, पक्का घर मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को फसल के दाम मिले, सुरक्षा मिले। इनके लिए हमारे इतिहास की परंपरा में एक शब्द प्रचलित रहा वो राम राज्य, इसलिए राम मंदिर बन गया। अब हम सब मिलकर सभी देश के हिंदू, छोटी बड़ी सभी हिंदू संस्थाएं, सरकार के अंदर है, सरकार में बाहर है, सब लोगों को मिलकर फिर से राम राज्य अर्थात समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त हिंदू, वैभव युक्त हिंदू, दूसरे शब्दों में हिंदुओं का स्वर्ण युग वापस लौटे, ऐसा हिंदू भारत बनाने के काम में हम सबको लग जाए। इतना बड़ा राम मंदिर का 450 वर्ष का विजयी संघर्ष हुआ, तो हम 14 जनवरी से 22 जनवरी देश भर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर विजय उत्सव, सिर्फ विजय उत्सव करने से पता नहीं चलता, श्री राम जन्मभूमि मंदिर विजय उत्सव मनाएंगे। वह उदय विषय में हमारे हर एक तहसील ब्लॉक में पद यात्रा, स्कूटर रैली, हिंदू मैराथन का आयोजन हो। 21 जनवरी रविवार है, तो यह स्कूटर रैली, पद यात्रा, हिंदू मैराथन 21 को योजना करते तो बहुत अच्छा रहेगा। 22 जनवरी जिस दिन मंदिर खुला किया जाएगा, उस दिन शाम को 5:30 बजे भारत के जितने गांव में हमारा काम है, 1 लाख गांव और शहर में, वो सभी जगह पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो। यह संघर्ष 450 वर्ष चला, इसलिए 450 से ज्यादा जिलों में उत्सव मनाएंगे। यह संघर्ष में 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया, जिनसे मंदिर बन रहा है, इसलिए 8 करोड़ दिए जलाएंगे पूरे देश में भी। तो 450 जिलों में 8 करोड़ से ज्यादा दिया जलाने का, दिया में मोमबत्ती का ही उपयोग करो। आसान होती है, एक जगह 25, 50, 100, 200, 500 मोमबत्ती, परंतु मोमबत्ती जलाने के पहले वहां चूने से हाथ से लिखेंगे श्री राम जन्मभूमि विजय उत्सव 22 जनवरी 2023। दूसरा वाक्य होगा, राम मंदिर हमने बना लिया, काशी मथुरा बना ली, लिखा होगा, उस पर ही दीपक मोमबत्ती रखेंगे। तीसरा होगा, धन्यवाद
450 वर्षों की 25 पीढ़ियों को ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, रामशिला भेजने वाले 6 लाख गांवों को, अयोध्या कार सेवा में आने वाले 8 लाख कार सेवकों को, बलिदानी लाखों कार सेवक राम भक्तों को, 1 लाख से ज्यादा साधु संतों, यही बैनर होगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, वह भी लिखा हुआ उस पर दिया होगा। यह हमारा 22 तारीख का कार्यक्रम होगा। अभी से सभी कार्यकर्ता उसमें लग जाओ और सामान्य हिंदू जनता भी उसमें जरूर सहभागी होगी। आपने घोषणा कर दी और हमारे हनुमान चालीसा के अंदर चल रहे हैं, उनमें जुड़े हुए सभी लोगों को निमंत्रित करो। अब मैं आगे के विषय के पहले आता हूँ। राम मंदिर बना लिया, राम राज्य मिलकर बनाएंगे। यह बनाने का हमारा आधार देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करना। वह समय 5 साल। 1 वर्ष में भारत में 1 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा, 5 वर्ष में 11 लाख हनुमान चालीसा। एक हनुमान चालीसा केंद्र में 4-5 की टोली बनेगी, आगे जाकर उसका प्रशिक्षण करेंगे। ये 4-5 व्यक्ति होगा, हर एक व्यक्ति को उस एरिया के 50-100 परिवार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मानिए एक हनुमान चालीसा 5 लोग, हर एक को 100 परिवार की जिम्मेदारी। मानिए एक हनुमान चालीसा में 500 परिवार की जिम्मेदारी, तो 1 लाख हनुमान चालीसा के आधार पर देश में 5 करोड़ परिवारों को जोड़ने का हम काम करें। एक व्यक्ति को 100 परिवार की जिम्मेदारी सौंपी है, महीने में 1 बार उनके घर जाना, कुशल पूछना। मानिए हर महीने 5 करोड़ हिंदुओं के घरों में हम जाएंगे। यह सामान्य नहीं है, यह विश्व विजेता कार्य है। तो हनुमान चालीसा केंद्र चलाना, 5 की टुकड़ी, हर एक को 50-100 परिवार, हर एक हनुमान चालीसा 1 मुट्ठी अनाज की थैली बांटकर 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करके गरीबों को बांटेंगे। एक हनुमान चालीसा केंद्र में 100 घरों से अन्न एकत्रित होगा, तो 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र में वर्ष में 1 करोड़ गरीब लोगों के पास से अन्न एकत्रित करके 25-30 लाख लोगों को हर महीने अन्न देने का काम भी हनुमान चालीसा केंद्र।